Hello, everyone. Hello. Yeah. Uh, so let's start with the session. Hello, everyone. I am Nisha Goel, and on behalf of Student Counseling Services and Career Council, I welcome you all to this uh, of insightful session of Facing Placement. The Student Counseling Services (SCS) is a student faculty body which aims at the holistic advancement and uh, of the students on the campus. It has five councils, namely Wellness Council, Academics Council, Career Council, Skill Development Council, and International Exchange Council. So, on this note, I would like to welcome our guest for today, Abhinav Patel Bhaiya and Pranshu Bhaiya. Hello, Bhaiya. हेलो ईशा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। Yeah. आवाज आ रही है Hello, ना? everyone. Uh, to start with this session, basically we will keep this like a Q&A session. So we have gathered some common questions and we will ask and like which is are the doubts of most of the people. So shall we start with the first question? आवाज एक बार थम्स अप दिखा दो कि लाइक आवाज आ रही है सभी को। एवरीवन इज रेडी, सो लेट्स। हाँ, फिर स्टार्ट करते Same from my end. Am I also audible? Just check with that. हैं। मेरे को आ रही थी। Done. ठीक। Okay, so the first question is the most common question that what resources did you use for the preparation? तो मैं प्रांशु, यू कैन मैं बताता स्टार्ट। हूँ. हाँ। Okay. So I assume so we are talking about the placement season where the roles that we're targeting is APM consulting. एक बहुत large portion आता है analytics का जिसके बेस कुछ रोल्स होते हैं प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट. उसके प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल्स कुछ हद तक सेम है. एक अब बार सेगमेंट ऑडियंस का काउंट ले लेते हैं ना। मेजॉरिटी ऑडियंस क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट एंड कंसल्टिंग रोल्स भी है या एनालिस्ट भी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनालिस्ट आल्सो? थम्स अप करोगे एक बार? वन। नहीं है, प्रोडक्ट कंसल्टिंग। ओके. सो मेजरली प्रॉपर प्रोडक्ट रोल्स के लिए कैंपस में यू विल गेट कंपनीज एट मैक्स 4 to 5 that will come for the APM role, which includes Flipkart, iLabs, Meesho, maybe एक दो और आ सकती हैं, but majorly range तो ये रहेगा. So the shortlisting criteria for this company is the first round that they post a problem statement for which you have to prepare a solution deck. उसके बाद एक shortlisting होगी. Then you move on to the shortlisting round. This is the proper APM role I'm talking about. If the deck round does not happen, you might have a resume based shortlisting or even have a OA assessment. सिमिलर रोल्स के लिए जो प्रॉपर एपीएम रोल तो नहीं है बट प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल्स आती हैं, वहाँ you have this aptitude round where you will get the questions on statistics, reasoning, and graphical questions. And based on the frequency of your applying, 50 or 60 shortlist can happen in the Facebook. So this is the upper part of getting into the in the rounds of interview. Okay, like majority audience here is product management and consulting. थोड़ी बहुत प्रोडक्ट एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की भी आई गेस. सो मैं जो कोर कोर skills companies are testing for it. So product analyst and business analyst is same kind of, and product management and consulting are same sort of. Skill set
मेजॉरिटी में सेम ही रहेगा, बट हाँ फिल्टरिंग प्रोसेस विल बी डिफरेंट। जो कंपनीज कम आएंगी एपीएम रोल के लिए, जो प्रॉपर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स होते हैं, 5-6 कंपनीज आएंगी, एंड वो वेरी हाई चांसेस 90% के अराउंड की वो डेक बनवाएंगी ही बनवाएंगी। उनके में लाइक आइदर इट विल बी फर्स्ट राउंड विल बी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट और डेक राउंड। उसके बाद जो डेक की शॉर्ट लिस्ट आएगी, देन उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंसल्टिंग में इट विल बी a few roles, like Nation with Namo might be coming for political consulting roles. Then आएगी Mastercard. Mastercard for associate consultant, and EXL also comes for associate consultant. तो यहाँ पे मेजोरिटी आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगी, फिर इंटरव्यू पे जाओगे। प्रोडक्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट को भी ले लो अगर। what is product analyst at its core? PM plus data analyst, और business analyst is basically consulting plus data analyst. So वहां पे you will have the aptitude round, जो भी एक या दो राउंड ऑफ टेस्ट होगा पहले, एंड देन फिर शॉर्टलिस्ट एंड देन इंटरव्यू प्रोसेस। ये मेजर सीन रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का। You asked about the sources, right? So I'll take on that. So the first thing जो सब prepare कर रहे हो, that is for the aptitude. To practice aptitude, I think at this point of time you would have started that, but you can if you have to start, you can start with India Bigs. ऐसा लेवल होता है उस क्वेश्चंस का जो प्लेसमेंट्स में सीधा पूछे जाते हैं, और इफ आपको एक लेवल और अपर हैंड चाहिए, आप कैट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना इनफ है मेरे मानने में to practice the aptitude questions. Same, it includes everything, statistics and all. इसके अलावा if you want to prepare how to make deck, so like deck making is a completely different thing. उसके लिए the first thing that involves is what is the content that you are putting it into that presentation slide, and the second important thing is how do you represent itself. So each slide and each content should be meaningful in a way that whenever a person is reading that, each and every point and slide should be connecting in a story that makes sense, right? So Abhinav, you carry on to this. ठीक है। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि पीएम के लिए देयर विल बी द फर्स्ट थिंग वुड बी डेक मेकिंग। कंसल्टिंग में इट वुड बी प्राइमरीली रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट, एंड एनालिस्ट रोल्स के लिए इट वुड बी एप्टीट्यूड राउंड का टेस्ट और समथिंग। एक एक करके आते हैं सब पे। तो एनालिस्ट पे आते हैं अगर, तो जो एप्टीट्यूड राउंड का टेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों रोल्स के इंटरव्यू की प्रिपरेशन तभी करना जब तुम्हारी एटलीस्ट एक शॉर्टलिस्ट तो आ जाए इनमें से किसी भी रोल पे, है ना, कि मैं पीएम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एनीथिंग दैट शुड बी आफ्टर कि आई हैव गॉट अ शॉर्टलिस्ट फॉर दैट, है ना। तो पहले एनालिस्ट का जैसे बता दिया प्रांशु ने कि कैट के रिसोर्सेज आर वेरी गुड। देयर इज एन ऑथर, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ प्रांशु। अरुण शर्मा। हाँ अरुण शर्मा। हाँ, तो बेसिकली दैट इज प्रॉपर कैट लेवल, एंड उतना तो पूछते भी नहीं है। तो एवरी चैप्टर उसमें लाइक 50% तो लगा होना चाहिए, एंड देन वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं कई सारी, एंड यू गेट लाइक बहुत सारे अलग अलग कैट प्रिपरेशन की कोचिंग होती है जिनके फ्री मॉड्यूल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उधर से क्विक ट्रिक्स मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड राउंड इज दैट पार्ट। सेकंड पार्ट इज कि बहुत सारी कंपनीज होंगी जो दूसरे आईआईटीज जा चुकी होंगी, एंड वहां पे उन्होंने क्वेश्चन करवा रखे होंगे, एंड मेनी ऑफ देम आर आउटसोर्सिंग देयर हायरिंग प्रोसेस। तो वो जिस भी सास प्लेटफॉर्म को यूज करिए टेस्ट के लिए, उसमें कई बार क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। उन आईआईटी में अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करो कि ये कंपनी आई है क्या, एंड उनसे क्वेश्चन निकलवा लो, है ना। दैट इज सेकंड वे ऑफ बूस्टिंग योर स्पीड। दिस इज फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट। फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जब डेक की बात आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम 3 दिन में बहुत अच्छी डेक बनाओगे इफ यू आर नॉट इनटू डेक मेकिंग, वन थिंग। सेकंड, इफ यू आर नॉट इन प्रैक्टिस ऑफ डेक मेकिंग, लाइक यू हैव नॉट बीन मेकिंग द डेक फॉर द लास्ट 1-2 मंथ्स, है ना। इट डेक मेकिंग क्या है, एक स्टोरी लाइन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, एंड स्टोरी लाइन कम्स वेरी बाद में, जब पहले यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, यू हैव मतलब सारे चैनल्स तुमने सोच लिए हैं सोल्यूशन के, यू आर फाइनल ऑन की व्हाट यू आर सॉल्विंग, व्हाई यू आर सॉल्विंग, हाउ यू आर सॉल्विंग, एंड देन उसे स्टोरी लाइन फॉर्मेट में कन्वे करना, दैट इज डेक।
तो आई वुड से कि अपने सीनियर्स को फॉलो कर लो लिंक्डइन पे, उनके लिंक्डइन अकाउंट में जाके पोस्ट में देखो इफ दे हैव पुट सम ऑफ देयर पीपीटीज जो उन्होंने किसी बिजनेस केस कंपटीशन या पीएम केस कंपटीशन में बनाई, वो डाउनलोड करो, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट कि अगर ये सीनियर जीता है किसी केस इवेंट में एंड इसकी पीपीटी गोज लाइक दिस, व्हाट वुड हैव बीन हिज थॉट प्रोसेस, what are the frameworks that person used to arrive at that solution. मतलब these are the quick ways to go to a solution. मतलब framework gives you a मतलब पतला स्कोप करके a way to reach your solution, है ना? तो ऐसे करके you need to be in practice of deck making first thing, and you need to be able to understand the thought process of the person who has made that deck. उसके बाद पार्ट आता है कि लाइक हाँ अभी आई एम मेकिंग द डेक्स, तो पार्टिसिपेट इन एक दो बिजनेस केस के बिजनेस कॉम्पिटिशंस, एंड उसमें जीतने के लिए पार्टिसिपेट मत करो, बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि इफ आई वुड हैव बीन डूइंग दिस उस वाले सीनियर की पीपीटी के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, या उसने जैसी अंडरस्टैंडिंग या स्टोरी लाइन बनाई थी तो कैसा होगा। आइडिया इज कि जब फ्लिपकार्ट एपीएम के लिए आए या हाईलैब्स आए, वो डेक बनाए, तुम्हारे पास उनका पहले से पता होना चाहिए। लाइक फ्लिपकार्ट का 5 स्लाइड का लिमिट होता है ना, प्रांशु कितने का होता है? 5 to 7 हाँ हाँ, तो उस सब की अपनी लिमिट्स होती है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी पीपीटी के पेजेस डिसाइडेड होने चाहिए कि इस पेज में मैं ये कन्वे करूंगा, इस पेज में ये कन्वे करूंगा। देयर आर कॉस्मेटिक चीजें जो स्लाइड पे करनी होती है, गुड मतलब गुड टू हैव थिंग है, उससे जो देख रहा होता है बंदा उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं होता तुम्हारी पीपीटी देखने के लिए, बट वो क्विकली स्किम थ्रू कर सकता है एंड ही विल लाइक दैट जो चीज इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो वो चीजें पहले से करके रख सकते हो एंड तुम्हारे पास फ्रेमवर्क मिल जाएगा बहुत सारी पीपीटी अगर तुमने देख ली तो। कुछ सोर्सेज ऐसे हैं लाइक इफ आई हैव नोटेड इट समवेयर, हाँ पीएम स्कूल में ई बुक्स करके एक सेक्शन होगा 1 से लेके 5 तक आई थिंक, वो किसी सीनियर ने मेरे को सजेस्ट किया था, मैंने वहां से देखी थी, दैट इज अ गुड थिंग। फिर पास्ट ईयर के बहुत सारे अलग अलग आईआईटी में फ्लिपकार्ट जाती है, हाईलैब्स जाती है, जो लोग की शॉर्टलिस्ट हो जाती है डेक, दे पुट दैट डेक ऑन द लिंक्डइन on इटसेल्फ। LinkedIn. तो वहां पे लिंक्डइन पे सर्च पे जाके लिखते हो अगर फ्लिपकार्ट एपीएम डेक ये सब करके तो डेक्स आ जाएंगी। ट्राई अंडरस्टैंडिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन। फिर आ जाता है कंसल्टिंग का पार्ट की रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही उधर हो रही है, तो उस दैट इज द प्लेस जहाँ पे अभी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसी जगह पे हैं लाइक अभी इंटर्नशिप्स जो की होंगी तुम लोगों ने वो की ही होंगी, एंड पीओआर के लिए सेम है, अचीवमेंट के लिए सेम है। द मेजर एरिया यू कैन प्ले अराउंड इज प्रोजेक्ट्स। तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग द जेडी ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी विच इज कमिंग टू कैंपस एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स थोड़े से ट्विक करके डालो। दैट्स इट। Adding on to that, so there are some companies जैसे मीशो है, वो एक अच्छा amount of weightage देती है on SQL. So if you are applying for any of the APM or product analyst role, even on the associate consultant, SQL is a very benchmark level of thing that every company expects. So आपको SQL में you need to have a basic understanding what is have basic questions होते हैं। अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू कैंपस एक्स प्लेलिस्ट, मैंने वहीं से किया था, एंड जस्ट सॉल्व एसक्यूएल 50 एंड हैकर एंड क्वेश्चंस, दैट विल बी मोर देन इनफ, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड। अगर ओए राउंड हो रहा है तो वहां भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं, there's a decent probability of that. Yeah, that's it on this question, Isha. I see a raise of hand. Questions last में करने हैं फिर अभी? क्या है क्वेश्चन, क्या है? We all Oh, we are losing you on network, Isha. Yes. Isha, you're not audible. Oh, hello. Yeah, now Yeah. you are audible. Yeah, okay. So भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
पीएम की तैयारी करते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि हमें कितना टेक सीखना है, लाइक किस लिमिट पे जाके स्टॉप करना है। और मोर ओवर अभी जैसे एआई पीएम भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमें एआई कितना सीखना है, ये सब डाउट्स हैं। So, talking about me, I knew analytics. I knew Excel, Python, Power BI, SQL, and जितने भी interviews I have given. So like I'll tell you the sequence of events. Yeah, interview rounds. So I took the final call of having a off-campus placement. So sequence of interview rounds will be, one is HR filtering round, where that HR will be trying to judge you on behavioral attributes, or maybe so there's some sort of filtering whether the candidate has some flexibility in time thing, or has that much activeness towards the role, or interest gauge कर रहे होते हैं. Second round is more about, I think it's more about judging your problem solving capabilities. So it will be around guesstimates and root cause analysis. रूट कॉज एनालिसिस में देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन. उसके लिए तुम लोग केस बुक सॉल्व कर सकते हो. दैट इज द बेस्ट वे किसी भी बिजनेस स्कूल की. आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर अपना बिजनेस क्लब का भी एक केस बुक आता है. आई हैव नॉट ट्राइड दैट, बट दैट इज प्रीटी गुड. माय फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी दैट. मैंने IIM अहमदाबाद की लगाई थी. दैट इज गुड. उसके बाद there would be a third round where they will be judging you on your proper PM thinking skills. Like it would be a product design question, then it could be product improvement based upon, like they will be trying to gauge what is your favorite product and then asking you how are you going about it to improve. तो ये 3 राउंड तो मैंडेटरीली होते ही हैं. then is Okay. So, okay. talking about the AI, yes. So I'm completing. तो उसमें इसके बाद Okay. इसके बाद थर्ड राउंड वुड बी, कुछ कंपनीज लेती हैं, कुछ नहीं भी लेती हैं. तो मैट्रिक्स प्लस टेक राउंड होता है. उसमें बहुत सारी कंपनीज आज के दिन लाइक थर्ड राउंड करने लग गए हैं. इसके बाद की लाइक मैट्रिक्स पे जाते हैं कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स, हाउ इफ दिस मैट्रिक इज टू बी मूव्ड, व्हाट वुड बी योर प्लान. एंड मैट्रिक ट्री बनवाने का डिसाइड कर रहे होते हैं कि लाइक आर यू एबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट वुड बी नॉसा मैट्रिक फॉर getting to a certain objective and then breaking it down into branches. वो सारी चीजें जो कुछ एक दो चीजें टेक में मांग सकते हैं. दैट वुड बी फ्रॉम प्रॉपरली एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज you need to be using tools nowadays. Like I in my organization currently use Mixpanel for a whole lot of data analytics. So I'm not using Power BI right now, but Mixpanel आना होना चाहिए. There's a tool called Retool करके, where you modify the chats of the ये आपका bots वगैरह. But these are very niche चीजें जो ऑफ कैंपस में मांगते हैं. ऑन कैंपस आई डोंट थिंक सो. प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिक जो कंपनीज आएंगी वो उतना टेक पे फोकस करती है. बट हाँ, डेटा एनालिस्ट कैपेबिलिटी वाले स्किल्स तो होने चाहिए कि लाइक एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI सॉर्ट ऑफ. So yes, adding on to that, as Abhinav said, mostly the requirements companies की ही होती हैं, especially in the on-campus placement. In 24 basic requirement ये था. Fast forward to today, पिछले एक साल में due to the AI advancements, I feel कुछ companies हो सकती हैं that will want you not a very high knowledge of the artificial intelligence, but the way of using that. I mean, you guys would have been using it, but as a APM, you need to have a certain idea of how do we, like, you can remove the dependency on the other teams. For that, आज के time पे we have a net and automation and every other tools. So अगर you have that tech knowledge of how to building an automation, so एक PM का बहुत काम easy हो जाता है, and that can actually give an edge while giving an interview. But that's not a very hard requirement. अगर कोई रोल आती है एज एन AI APM, like last year Jarvis आई थी AI APM रोल के लिए, so that will like really help you, like because the demand in the AI APM in the
off-campus market has really been viewed that I have been followed. So that is one of the things I believe. But the AI APM thing is a very niche role, and I don't think so कि campus में for the Campus में fresher बहुत आएंगी. entry they might be coming. So going into That's true. that niche and targeting it is too risky at this moment. ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक काफी टाइम तक लोग काफी लाइक किसी दूसरी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बट एंड स्पेशली जब कोई डेटा एनालिस्ट और इन सब रोल्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है और एंड तक आने के बाद नाउ दे फील कि उन्हें लाइक प्रोडक्ट की भी प्लेसमेंट में बैठना है तो क्या वो लोग ऐसा कर सकते हैं और उन्हें कितना कितना और प्रिपेयर करना पड़ेगा? Uh, ठीक है. अगर कोई बंदा entirely प्रिपेयर किया है फॉर द डेटा एनालिटिक्स रोल और उसको अगर एपीएम रोल के लिए बैठना है तो स्टिल एक मिनिमम टाइम 2 से 3 महीने तो मेरा मानना है इसको लगेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ एपीएम as an APM you have to think how do you have to break down the problems. APM is basically problem solving. You have to understand the user empathy and you have to just streamline the user journey of whether of whatever platform that they're using, right? So there is a structure, there is a way of doing that. So generally for a normal person to achieve that will take 2 to 3 months to understand that, right? So अगर किसी को उस रोल में बैठना है नहीं, they actually want to get select into that, so they should really be good in this problem solving skills. And you have, if you want to get shortlist, if it is that making that, then Abhinav already told what do we have to do. And अगर many companies को OA assessments भी होते हैं, so you can achieve that also. But अगर किसी में resume shortlist है, then it will uh, entirely depend on your internships and what projects that you have done. So that is something you cannot change much about it. You can work on your projects, but some companies are only interested on the have a very high weightage on your internships or if you have done into product management. So Pranshu was giving the reality check basically if like you have been for the whole lot of 4 or 5 years depending on whether you were BTech or IDT trying data science and software development or similar fields. So it might be very tricky for you. Like there is a common notion around college or outside college also that PM has no entry barrier and anyone can come in and like crack the interviews and other things. But they don't realize it does not require a very what to say एक perfect roadmap to get to a hard skill is totally different than for a product management where your soft skills matter more and the thinking capability from the user empathy side matters more. But ये हो गई सच्चाई की बात. अभी if we need a quick fix तो वो कुछ resources I'm telling you guys can be noting down and that might be helpful है ना. So प्रोडक्ट मैनेजमेंट में लाइक द फर्स्ट थिंग कम्स डेक है ना. तो डेक में देयर डोरेमोन डेन के भी लोग मतलब देयर आर कोहोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट. वन इज नेक्स्टलीप, वन इज डोरेमोन डेन, देन वन इज पीएम स्कूल शायद. तो यहाँ पे दीज पीपल व्हाट दे आस्क देयर स्टूडेंट्स कि वंस यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट पुट द डेक ऑन लिंक्डइन एंड जिसके ज्यादा लाइक्स आते हैं उसके बेसिस पे शायद वो रिवॉर्ड करते हैं या कुछ तो रिकॉग्निशन मिलता है, आई डोंट नो. बट वो अपनी डेक्स डालते हैं. तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप शुड बी कि गोइंग टू लिंक्डइन सर्चिंग फॉर सच डेक्स लाइक डोरेमोन डेक, नेक्स्ट लीप डेक व्हाटएवर है ना. वो चैलेंज देते हैं अपने अपने कोहोर्ट के स्टूडेंट्स को. ठीक है, उधर जाना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है एंड देन मे बी उसका थॉट प्रोसेस समझो. चैट जीपीटी के साथ बैठो, उसे चैट जीपीटी को अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर बनाओ, उसके साथ डिस्कस करो कि लाइक व्हाट इफ आई वुड हैव थॉट इन दैट लाइन. मे बी जिसका डेक आप देख रहे हो इट इज 6 on 10 एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ यूजर एम्पैथी लेंस जहां पे तुम ज्यादा बेटर सोच पा रहे हो. तो इट कुड आल्सो बी अ केस आई एम टेलिंग यू कि डेक मेकिंग के बारे में स्टोरी लाइन जो बनानी है सोल्यूशन को लेके वो कैसे, उसके बारे में कैसे सोचना है. तो जब ज्यादा से ज्यादा डेक देखोगे, गेज करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइक या दिस इफेक्ट इज गुड. यहाँ पे देयर प्लेसेस जहाँ पे
solution is good, person is not able to communicate to the जो बंदा देख रहा है वो पीपीटी कि what my idea is, how it will be getting executed, what will be the prioritization, या उसने कम्युनिकेट भी कर दिया तो शायद लॉजिक कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो वो डेस्क देखो जाके पहले तो, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म्स नोट कर लो एंड लिंक्डइन पे जाके सर्च करो, इनकी डेस्क मिलेंगी, उनके बारे में देखो। दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, डेक मेकिंग का। डेक के स्ट्रक्चर पहले से बना के रखो, जब भी कंपनी आएगी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब देगी उससे 2-3 दिन ही मिलेंगे तुम्हें, तो सारा कुछ नहीं हो जाएगा उसमें, 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक तुम्हें सोचने में लगेगा, 1-2 दिन मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। वन थिंग इज दिस। सेकेंड, वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर डेक, है ना, डेक बनाने के पहले इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इंटरव्यू, 1 मिनट, Pranshu, you can take on, I'll take 1 minute Okay, to come back. sure, sure. So, as Abhinav told about the deck making, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एपीएम रोल्स या सच अदर बिजनेस रोल्स में पूछते हैं, सो दे हैव दिस वेरी कॉमन गेस्टिमेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको प्रैक्टिस करना लाइक दिस इज लाइक 40 मतलब 80% चांस तो है कि दिस विल बी आस्क्ड इन योर एपीएम इंटरव्यूज और एनी अदर analytics interview or even in the consulting interview. So practice guesstimates. You can go on with any other top of the B schools case study books. उसके बाद root cause analysis type के problems होते हैं where you have been given a problem statement and you have to find कि what is the core reason to that. So in type of questions where you have to think very much thoroughly and cover each and every aspect that can be possible. So in such type of question, there is not a proper or correct answer. You will not be based on basis कि आपको सही answer मिला या नहीं, but rather have you like thought of each and every point which should have been thought and asked your interviewer कि क्या हमें इस direction में जाना है, क्या ये main problem इस issue के regarding है. So your approach matters to your interviewer, not your answer in such level of problem. That how do you think? RCK subset में you have product design, you have product growth or product innovation type of problems. So practice these as much as possible. That will give you an idea of how do you have to think, right? So this is this is getting the hard knowledge of how do you have to think. Then also practice a lot of how do you have to speak in front of the interviewer, because the moment they have asked you a question, you don't have to answer repeatedly that आप शुरू हो गए उसका आंसर देने के लिए. First, you have to think, you have to wait, you have to ask clarifying questions, you have to think a lot, you have to ask clarifying questions, you have to make sure that आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. आपको जज करना होगा on the basis how does the interview reacts, because अगर starting में वो point ही गड़बड़ हो गया, then it will affect your interview a lot. And yeah, iska study material, as I have told, you can just go through the case studies, case study books. Even if you go on the LinkedIn, many of the people have shared their interview journey, like what questions were asked, how did they apply to it. Even on LinkedIn, there are various creators. They regularly post कि famous companies के APM role में which question were asked and what is the correct way of answering it. तो कभी भी किसी APM role में कोई एक सही आंसर नहीं होता है in RC based questions का. Various type of answers हो सकते हैं, बहुत probability हो सकती है. It's just depend on how do you structure and how do you like present your answer, and you make sure that you have covered each and every aspect so that it looks thorough and well researched, right? So these are like very much important for the for getting an idea of this problem solving skills. Rather, in your interview, and they can also ask for like for your what you have done in your resume, किन प्रोजेक्ट से आपने काम किया उसके बारे में एक अच्छा डिस्कशन चल सकता है. So mostly तो यही रहता है, guesstimate, RCA, product design, and rest is in the mood on the interview, because RCA can be like very open ended. वो एक genuine product based problem भी हो सकता है, or it could be like anything. Interviewer even can ask you that, let's say in 2050 we have to go to a different planet. How will you go?
So इससे कोई एक सही आंसर नहीं है, but you have to think from the personality, that how much power do you have, what you can do. So they just test you on the basis how do you just start and approach it. That is the crux of this of your interview. मैं कहाँ पे था लास्ट टाइम? You were saying RCA. ठीक है, सो डेक मेकिंग पे थे क्या? हाँ, हाँ, तो definitely. यू गाइस विल गेट योर गुड डेक्स देयर, है ना? कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स डिजाइन में हो तो उनसे थोड़ा इम्प्रूव करा सकते हो विजुअलाइजेशन ऑफ द डेक। एंड फिर आता है इंटरव्यू राउंड। तो आई एम ड्रॉपिंग अ लिंक इन द चैट। इट इज द प्लेलिस्ट ऑफ पीएम स्कूल एक्सप्लेनर्स। तो यहाँ पे whatever topics are majorly asked in the interviews, they have covered everything. Like this could be your go-to playlist just 3-4 hours back the interview, है ना? तो ये देख के जाना, यहाँ से काफी सारे कंसेप्ट तुम्हें चमकेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे गेस्टिमेट भी बताया हुआ है। गेस्टिमेट के लिए मोर एक्सरसाइज लगेगी, रूट कॉज एनालिसिस के लिए और एक्सरसाइज लगेगी, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए द फ्रेमवर्क, सर्कल्स फ्रेमवर्क जो उन्होंने दिया, दैट इज टू गुड। ऐसे ही और सारी चीजें देख लेना इधर। दिस इज अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड देन एक बार जब तुम्हें एक पूरी प्लेलिस्ट का जिस्ट मिल जाता है, तुम कोर चीजें समझने लग जा रहे हो, तुमने पीपीटी बनाई ली थी, then you need to do peer-to-peer interview with your friends who are into this product management, consulting, other thing, है ना? या फिर अपने सीनियर्स के साथ करो जो पहले सेलेक्ट हुए इन रोल्स में, ठीक है? एंड डोंट टेक एनी फीडबैक टू योर ईगो, है ना? जो फीडबैक दे रहा है, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट पॉजिटिवली, कि नेक्स्ट टाइम द इंटरव्यू आई एम गिविंग तो उसमें सेम फीडबैक नहीं आए। So this is about interview, and interview का I already told कि major चीजें क्या है, guesstimate, root cause analysis, then there is product design, product improvement के question, metrics के questions are becoming common, पहले नहीं पूछते थे। To practice interview के questions and maybe कहीं अगर कोई टेस्ट होता है तो शायद पूछे, वेरी लेस चांसेस। उसके लिए pmexercises.com पे जा सकते हो। वहां पे लाइक your peers are putting the questions there and you can be answering it or viewing others answers। तो तुम्हें क्या करना है, वहां स्किम थ्रू करना है सबके आंसर से जो क्वेश्चन है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दैट पर्सन माइट बी थिंकिंग। सो रेडिट की तरह समझो उसे, ठीक है? सारे आंसर वहां जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? एंड वहां पे तुम्हें फ्रेमवर्क भी मिल जाएंगे। तो आई एम ड्रॉपिंग द लिंक ऑफ दैट ऑल्सो हियर, दैट इज pm exercises.com, this might work। बस ठीक है, आई एम कंप्लीटेड ऑन दिस। प्रांशु अब बताओ। I think this question has been answered. Isha, you can ask the next one. So next question is that कि जब यूजली प्लेसमेंट सीजन काफी स्ट्रेसफुल होता है, तो उस टाइम पे काफी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं वो क्या है और उनको कैसे अवॉइड कर रहे हैं? मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। तो प्लेसमेंट सीजन, आई एम अज्यूमिंग अभी आपका डे 0 आने वाला है, यू यू हैव गॉट सम शॉर्टलिस्ट, राइट? सो अब यहाँ पे दो टाइप के पर्सोना बनते हैं। एक ऐसे जिनके पास बहुत शॉर्टलिस्ट आती है फेज 1 में, एक पर्सन ऐसा बनेगा जिसके पास ठीक ठाक शॉर्टलिस्ट आएगी, और एक पर्सन ऐसे जिससे कोई शॉर्टलिस्ट ना आएगी, राइट? सो जिसके पास बहुत शॉर्टलिस्ट आई है उनके मेजर प्रॉब्लम्स ये हो जाते हैं कि जब उनके इंटरव्यू का टाइम आएगा, लेट्स से किसी की डे 1 में 3 इंटरव्यू साथ में पड़ सकती है, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपके तीनों इंटरव्यू सेम टाइम पे हो रहे होंगे। मेरे साथ पर्सनली चीज हो चुकी है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम ब्लैंक कि व्हाट शुड आई डू, कि एक जगह मेरे यहाँ का इंटरव्यू भी चल रहा है, मेरे इस कंपनी का भी चल रहा है, मेरे इस कंपनी का भी चल रहा है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल यू कैन डू इज फर्स्टली प्रायोरिटाइज कि कौन सी कंपनी में आपके होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली लग रहा है कि यू कैन डू द बेस्ट। जस्ट गो इनटू दैट, एंड फॉर द रेस्ट टू टॉक विद द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स कि भाई मेरा जो इसमें नाम है, मेरे को थोड़ा लेट होना है कि भाई मेरे फर्स्ट इस कंपनी में हो जाए, मैं फ्री होकर इसमें आके इंटरव्यू दे दूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर हैंड। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टाइम पे
सेम टाइम पे आपके बाकी कंपनीज के इंटरव्यूज हो रहे हो, तो आप कंप्लीटली मिस आउट कर जाओगे। और उसके बाद आप दे तो एक इंटरव्यू रहे हो, बट इन योर माइंड यू विल बी हैविंग द थॉट्स ऑफ कि भाई मेरा वो बीत जाएगा। सो बी वेरी मच मेंटली प्रिपेयर इन सच काइंड ऑफ कंडीशंस, दैट ऐसी चीजें होंगी। और अपने साथ में अगर आप बीटेक में हो तो अपने आईआईटी के फ्रेंड्स को लेकर रखो कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, यू कैन नॉट रन इनटू फ्लोर्स फॉर टू सर्च फॉर सम पर्सन कि भाई मेरी हेल्प कर दे। यू नीड टू हैव दोज फ्रेंड्स जो उस टाइम पे आपके लिए दौड़ेंगे और आपके लिए करेंगे। एंड यू हैव टू बी लाइक स्ट्रेस फ्री इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस। उसके बाद लेट्स से जिसके पास ठीक ठाक शॉर्टलिस्ट आई है, उसको तो फिर ठीक है, किसी के दिन में एक टाइम पे एक इंटरव्यू हो रही है, सो जस्ट फोकस इनटू दैट। एक टाइम पे एक का ही सोचो, उसका इंटरव्यू दो। और लेट्स से जिसके पास अगर कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आई है, सो डोंट फील कि दिस इज द एंड और अभी कुछ होगा नहीं। फेज 2 में भी अच्छी कंपनीज आती हैं, आप अप्लाई करते रहो, उसके बाद आएंगी, यू विल गेट दो शॉर्टलिस्ट, फिर उस पर फोकस करना। डोंट बी वेरी मच डीमोटिवेटेड कि अब क्या होगा, कुछ ऐसा होता नहीं है। So this is the from the point कि you are having the before you are in the interview round, right? फिर जब फेज 1 खत्म होता है, देन बहुत ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं कि भाई इस रोल पे कंपनीज नहीं आ रही हैं, मैं ऑफ कैंपस ले लूंगा एंड एवरीथिंग। just to give us a reality check, off campus में getting an interview is is difficult than cracking it. So on campus we have a very good opportunity to actually get a very good placement. So don't lose on your heart. लगे रहना. End of the day, you'll get a very good companies. Abhinav, if you have to add something. सबसे प्राइमरी थॉट, नॉट हियर थ्रू आउट, लाइक स्ट्रेस कहीं पे भी तुम्हें आ रहा है तो देयर इज अ प्राइमरी थॉट, दिस इज नॉट द एंड, है ना। ऐसा समझो हमने सेट्स चैप्टर पढ़ा होगा जेई की प्रिपरेशन में, हमारे कॉलेज जो कंपनीज आ रही है दे आर इन सम काउंटेबल नंबर्स, ठीक है। कॉलेज जो नहीं आ रही उनको भी ऐड कर दोगे तब जाके एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। योर कैंपस प्लेसमेंट इज नॉट द एंड, अगर वहां पे नहीं लग रही है, यू हैव योर ईमेल आईडी जिसके आगे ITBHU का डोमेन है, वन थिंग दैट इज योर टैग वैल्यू, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक सेशन बाद में कर सकते हैं मे बी कि ऑफ कैंपस कैसे प्लेसमेंट लेना है, बट द थिंग इज कि डोंट लूज द होप ऑन द, मतलब लाइक कैंपस प्लेसमेंट्स में पूरी एनर्जी डालो, पूरे जो भी एफर्ट्स मार सकते हो, बट द थिंग इज जो कंपनी कैंपस नहीं आ रही वो बहुत ज्यादा है ना, तो तुम्हारे पास तुम्हारी ईमेल है, अनलिमिटेड लोगों को रीच आउट कर सकते हो, दिस इज द प्राइमरी थॉट, ठीक है। सेकेंडरी, जब कॉलेज में इंटरव्यू चल रहा है तो एज जैसे प्रांशु ने पर्सोनास डिस्क्राइब किए, तो आई थिंक उसमें कुछ और ऐड करने को नहीं है, बस ये है कि व्हेन यू हैव क्लियर्ड राउंड 1 ऑफ सर्टेन कंपनी एंड उसके राउंड 2 में जाना है, डोंट गो ऑन टू मगिंग अप समथिंग न्यू, ठीक है। जो आता है उसमें थोड़ा काम रखो एंड तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। 2 इंटरव्यू राउंड्स के बीच में देयर इज नो स्पेस कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, दैट्स इट। So most of the common questions we have covered till now. So now I would like to ask the audience to ask their doubts if they have any. अगर लाइक किसी का टेक का रोल है बट उसको ट्राई करना है प्रोडक्ट में, तो लाइक वो कैसे अपना रेज्यूमे टेलर करे अपना, क्योंकि मोस्टली जो लाइक प्रोजेक्ट्स हैं वो सीक्वल बेस्ड होंगे या फिर मतलब लाइक डेटा एनालिटिक्स टाइप के होंगे या फिर डेटा साइंस के होंगे, तो प्रोडक्ट के लिए कैसे कैसे प्रोजेक्ट डाल सकते हैं हम लोग ताकि शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो आ जाए, क्योंकि एप्टीट्यूड का तो तैयारी करती हैं जो DA वाले होते हैं, तो वो अगर आप बता सकते हैं तो। अगर देखो फर्स्ट मतलब सारे रोल्स के लिए पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से जाना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या कहती है कि मैं एक रेज्यूमे बना रहा हूँ, वो रेज्यूमे कोई देखेगा, वो फिल्टर करेगा, वो रेज्यूमे वो स्पाइक्स नोट करेगा कि व्हाटएवर द स्पाइक्स दे माइट बी थिंकिंग कि इज गुड फॉर दिस प्रोफाइल, है ना। तुमने टेक में कुछ काम किया है,
if you're making a resume for this business analyst or consulting, तो think about कि इस project के through business value क्या drive हुई है. Make the pointers about those things and a little bit of tech, है ना. तो tech can be reduced from 100% to maybe 30-40% and rest directed towards business metrics or business outcomes, है ना. अगर प्रोडक्ट एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्शन में जा रहा हो तो मेक दैट सेम टेक प्रोजेक्ट अराउंड की हाउ यू थॉट अबाउट इट फ्रॉम द यूजर्स एम्पैथी. यू व्हाट वाज द यूजर पेन पॉइंट व्हिच आई वाज केटरिंग टू. जब मैंने सॉल्व किया तो यूजर का कौन सा, यूजर को क्या बेनिफिट मिला, वो फीचर मैंने कैसे बनाया. दिस शुड बी अ प्रॉपर मैपिंग की दिस वाज द यूजर का पेन पॉइंट, this is how I thought about a feature and this feature delivered this benefit. So user pain point, your thought, फीचर, बेनिफिट. ठीक है. तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो रोल है, प्रोडक्ट एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वहां तो मैं यूजर एम्पैथी कन्वे करनी की आई थॉट अबाउट दिस पेन पॉइंट ऑफ द यूजर. वहां से ये फीचर मेरे को लगा कि टेक कैपेबिलिटी से बन सकता है, दिस सॉल्व्स एक्स थिंग एंड एक्स थिंग डिलीवर्स वाई बेनिफिट. ठीक है. व्हेन यू आर इनटू बिजनेस रोल्स की बिजनेस एनालिस्ट है, कंसल्टिंग है, देयर यू नीड टू शो कि मैंने ये बिजनेस मेट्रिक्स मूव किए या ये बिजनेस मेट्रिक्स मूव करने का ऑब्जेक्टिव था. आई थिंक ये सफिस करता है हमारा आंसर ना. प्रांशु कुछ Yeah. ऐड कर. Adding on to this, like again, like this will be applicable to the companies जो resume shortlist कर रही हैं on the entirely product side. अगर कोई proper APM role है तो वो entirely resume based shortlist करे, वो बहुत ही कम होंगे, like 20 or 30%. कंपनी APM roles के लिए आती भी कम है और उसके भी 20-30% होंगी जो proper resume shortlist करेंगे. So rest you have a very good opportunity कि जहाँ पे deck making हो रही है, यहाँ deck making नहीं है, you'll have this open OA assessment round. वहाँ पे आप you have the same advantage जो किसी proper APM के बंदे को भी है. आप उस timely आप उसको उस round को clear करो, you will be into the interview round. वहाँ it matters how you take on the interview and just make sure कि you just prove yourself that you know as much as an APM should have known. That's it. And like- while you are a PM in a company, you need to drive get outcomes from a variety of different job roles, है ना. So अगर maybe if PM में apply करो, you are already into tech, तो maybe one good way about it could be कि एक ML का project डाल दिया. That should be the third project. First project could be कि how, मतलब एक product का कोई project डाल दिया, that shows कि you have user empathy. Second could be some sort of analytics का project wherein you are doing something with the business metrics. ठीक है. And third proper machine learning project डाल दिया. तो ये है you are conveying the person कि भाई मेरे को टेक्स्ट से लेके यूजर एम्पैथी तक I have a this spectrum, है ना. और लाइक अभी एप्टीट्यूड में इंडिया बिक्स ही करना सही रहेगा या फिर टाइम्स के शीट बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अभी टाइम्स छोड़ सकते हैं. इंडिया बिक्स लाइक तुम्हारा कवर अप कर लेगा 80% ऑफ द प्लेसमेंट के ओएस असेसमेंट्स को. अगर तुमको रेस्ट 20% के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, यू हैव टाइम, यू कैन डू इट, नो डाउट. कैट टाइम्स के मटेरियल आप कर सकते हो. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू दैट आपका और रिवीजन और उसके लिए अगर पास टाइम बचा है देन यू कैन ऑब्वियसली कैन डू दैट. बट 80% आपका कवर अप इंडिया बिक्स से हो जाएगा. ओके. Does this answer your question? Bhaiya, there are some question in chat also. Okay. Okay, somebody is asking that when to start applying for off campus. When the first phase has ended, and I don't think so if you are here for product management and consulting, so second phase में decent, I don't think so decent product and consulting roles even come, and if they come they don't even pay around 7-8 lakhs, so that is not a good amount. So focus your give your 100% focus and hard work for campus placement till phase 1 ends. Phase 1 जब खत्म हो जाए, go full fledged in off campus placement. You might get opportunity in phase 2 for product analyst role, but APM role और consulting role तो नहीं आएगी. Product analyst and business analyst आ सकती हैं, which at max will give you like 12 to 8 लाख 14. 10 लाख रुपए इसी रेंज में रहेगा.
10 लाख में भी if your किस्मत is good and this year phase 2 में 10 लाख कंपनी आ जाए, but it would be around 6, 8, 10. हेलो। हाँ, एक क्वेश्चन है भैया। ये जो कंसल्टिंग की जो कंपनीज है, मतलब जैसे कि मैकिन्सी है, लास्ट टाइम भी आई थी, तो जितनी मतलब प्रॉपर कंसल्टेंसीज हैं, उन लोग का जितना मैंने सर्च किया है उसमें उनके स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे उनका भी होता है तो गेमिफाइड राउंड्स होते हैं, तो वो उसके बेसिस पे ही लोग को सेलेक्ट करते हैं। तो जो कॉमन ओएज होते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह और जनरल रीजनिंग वगैरह, वो मैंने नहीं देखा कि कहीं पे पूछी जा रही है। तो कहीं ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है या फिर नहीं ही पूछा जाता? तो क्या मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कंसल्टेंसीज क्या चाह रही हैं एग्जैक्टली। तो हाँ ठीक पांचू। है, एक चीज ऐड करता हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैकिन्जी आई थी, तो उसका फर्स्ट राउंड था, देयर वाज दिस गेमिफाइड राउंड दैट यू हैव टू लाइक फाइंड समथिंग, बहुत सारे पजल्स आपको टाइम स्लॉट में सॉल्व करने थे। वैसा सिर्फ मैकिन्जी में हुआ था। रेस्ट एक कंपनी मास्टर कार्ड आई थी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती एसोसिएट, है कंसल्टिंग में मेजरली। जैसे मास्टर कार्ड आई थी, उसका एक उसका ओए राउंड हुआ था। एंड रेस्ट के तो फिर वही रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, लाइक नेशन विद नमो आई थी, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, दैट वाज आल्सो डन ऑन द रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। एक दो कंपनी आ सकती है गेमिफाइड राउंड पे। आई डोंट नो हाउ यू कैन प्रैक्टिस दैट, दैट इज लाइक इट डरली डिपेंड्स उस टाइम पे आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। That is very non-deterministic. You cannot be practicing games, or there are n number of games. First thing. Second thing, McKinsey did not come to campus. McKinsey का there is a enablement center, है ना? So that subsidiary of McKinsey came, and the package was not good. I don't think so कि तुम्हें अपना time invest करना चाहिए game सीखने में just to crack that McKinsey. If you're going about the brand name, then surely you can try, but games कैसे practice करोगे? I don't really understand. Consulting में if you go money wise, then the best opportunity is Mastercard, and second best is political consulting में Nation with Namo. मोस्टली ये दोनों आई भी थी जो अच्छा पैकेज दे रही थी। One good opportunity that is also that one. DA का full form क्या था? ZS Associates में? That is also sort of डिसीजन एनालिटिक्स। decision analytics associate role from ZS Associate. उनका तो पेपर हो गया They शायद। get some good projects. Like a friend of mine is working on a project with Hershey's. आई बिलीव उसका राउंड स्टार्ट हो गए होंगे असेसमेंट के, जो होने वाले हैं। और भैया ये जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है कंसल्टिंग के लिए, तो उसमें जैसे प्राइमरी फोकस उनका प्रोजेक्ट्स पे रहेगा, तो मेजरली केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट्स ही होने चाहिए, है ना? राइट? It depends company to company. For Nation with Namo, I can tell you that they do not value a single thing. They need I'm not revealing it to you, but I know for a reason that they have certain benchmark for 10th and 12th percentage. They have certain benchmark for your CPI. They have certain benchmark for there should be X number of internships in the resume. They have a benchmark for you should have X number of achievements. There's a benchmark for there should be X number of PORs. I know about Nation with Namo in broad. Mastercard में भी which I have sense that वहाँ पे internship matter कर रही थी and project भी little bit, है ना? But वो मोस्टली सारा कुछ Mastercard का process was entirely different. वहाँ पे पहले OA हुआ था, right? ओए पांचू हुआ बता था। भाई ने। हाँ। मास्टर कार्ड में व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन ओए राउंड, बट मैंने बहुत लोग का मानना था कि दैट वाज ओए प्लस रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट। उन्होंने दोनों पैरामीटर शायद चेक किए थे। आफ्टर दैट इट वाज इंटरव्यू। So what you can do, majorly the crux of your resume that you have hands on with your projects and internship. आप internship भी नहीं कर सकते हो, तो या जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आप उसमें डाल दो। इवन ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स मैटर्स इफ that directly aligns with your hard skill of this APM or consulting. अगर आप कोई केस कंपटीशन जीते हैं, you have achievements in that will definitely help you. यार एक सही चीज याद दिलाई, whenever you are getting a company on placement portal, तो उसके JD पढ़ो। तो हमारे पास परप्लेक्सिटी का प्रो होगा, वो अपनी IIT BHU की ईमेल पे मिल जाता है। रिसर्च अबाउट द कंपनी, उसके पास
क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या कर रही है, वो किस डोमेन में है, उसके कस्टमर्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टेलर करो अपना रिज्यूमे कि दैट इंक्रीजेस योर चांसेस फॉर गेटिंग अ शॉर्ट लिस्ट. They want somebody who is interested into that space or may have done something in that space. So that would be that would be a better chance for them getting a more suitable candidate, है ना, अगर मैं उनके पॉइंट से सोचूं. वैसे भी सोचना है तुम्हें कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा. ओके भैया, थैंक्स. भैया अगर इंटरव्यू में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उन्हें कैसे प्रेजेंट करें? तो ये वही स्टार मैट्रिक्स है भाई, है ना. लाइक could be two ways, है ना. One is if you're very comfortable in communication skills, like you know how to make a story out of anything. मेरी इंटर्नशिप अगर मेंटल वेलनेस के स्पेस में एक प्रोडक्ट में थी एंड देन आई एम सिटिंग अक्रॉस अ कंपनी का इंटरव्यू हु इज सेलिंग ऑटो पार्ट्स, है ना, और मेरे को उसके लिए कोई स्टोरी बनानी है तो आई कैन मेक इजीली, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल वहां पे. इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल तो एक डायरेक्शनल फ्रेमवर्क जो होता है वो स्टार होता है कि सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट. की आई वाज सिचुएशन इज बेसिकली आई वाज in XYZ role in a ABC company. Then situation task, I was given this task and I was supposed to move this metrics from X to Y. Then A comes action कि I did XYZ things. Then R result. Then I actually my work moved those metrics. तो इस डायरेक्शन में सोच सकते हो, ये थोड़ा हेल्प आउट करेगा. मतलब मेजरली ये रेज्यूमे पे पॉइंटर्स लिखने के लिए यूज होता है, बट हाँ अगर इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद कम्युनिकेशन तो ये यूज करके सोच पाओगे एटलीस्ट And इंटरव्यू के also, माहौल में, क्योंकि and वहाँ also प्रेशर make ज़्यादा होता है. and also make sure you just not very much deep dive into explaining, because जो इंटरव्यू लेने आ रहा है वो हमसे लेट्स से 3-4 साल सीनियर होगा और ज्यादा, मतलब मोस्टली 3-4-5 साल ही सीनियर होते हैं, जिनका दे आर डूइंग द जॉब 5 days a week. उनको बोल देगा जाके आपको इस एक्स कंपनी एक्स कॉलेज में आपको इंटरव्यू लेना है. सो दे हैव बीन अलॉटेड अ टाइम जिसमें दे हैव टू जज यू ऑन द बेसिस जो वो सोच कर आए हैं. तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि गो थ्रू विद योर इंटर्नशिप और गो थ्रू विद द प्रोजेक्ट, सो यू शुड हैव बीन प्रैक्टिस इट कि आपको इसको 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर एक इंटेलिजेंट वे में उसको Actually, एक्सप्लेन करना है. बिकॉज अगर आप उस पर 5 मिनट उस पर ले लोगे तो दैट विल क्रिएट अ वेरी मच ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द इंटरव्यू एंड इट विल अफेक्ट इट. and yeah, इसी के लिए I already told you that no interview makes sense अगर तुम इंटरव्यू रूम में जा रहे हो टू द रियल इंटरव्यूअर एंड यू हैव नॉट प्रैक्टिस दैट इंटरव्यू एटलीस्ट 2-3 टाइम्स विद योर फ्रेंड्स. आपको उतना कंफर्ट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना. You need to have all the questions का आंसर written अपने पास ऑलरेडी किसी डॉक में, है ना. There should be no surprise element of the question. अगर इंटरव्यूअर बहुत दिमाग नहीं लगा रहा है तो तुम ऑलरेडी सारे क्वेश्चन गेस करो, चैट जीपीटी के साथ बैठो, उससे पूछो कि ये कंपनी है, ये जेडी है, मैं से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है. वो कुछ क्वेश्चन बताएगा, उसके आंसर अपने अपने रेज्यूमे के अकॉर्डिंग तुम्हारी जो जर्नी रही है 4 साल की कॉलेज की वैसे फ्रेम करो आंसर. एंड देन 2-3 इंटरव्यू दो दोस्तों के साथ, वो तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएंगे, दोस्त तो अच्छे ही होते हैं कमियां बताने में. वन थिंग इज दैट. सेकंड, जैसे तुम्हें रिज्यूमे में स्पाइक चाहिए होती है कि इफ आई हैव रिटन की अवॉर्डेड गोल्ड मेडल एट एन एक्सी इवेंट वेयर 5000 स्टूडेंट्स केम, वैसे ही तुम्हें इंटरव्यू में भी स्पाइक चाहिए होते हैं अपने स्टेटमेंट में. इफ आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन अ वेरी क्या कहते हैं हाई एम्पलीट्यूड का वॉइस जिसमें लो पिच है, तो वो भी मोनोटोनिक लगेगा. मैं धीमी आवाज में बात करूंगा वो भी मोनोटोनिक लगेगा. जहां पे मुझे एम्फेसिस देना है या आई वांट अ स्पाइक जहां पे वो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट 100% ऑफ द आंसर विच यू आर गिविंग टू एन इंटरव्यूअर उसका 30% भी वो सुन नहीं रहा है, ठीक है. ये एक्सेप्ट करके चलना. अब यू नीड टू कंट्रोल द नैरेटिव थ्रू आउट द इंटरव्यू कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ पे स्पाइक चाहिए अपने इंटरव्यू में. तो जहां पे भी यू नीड अ स्पाइक अबाउट सर्टेन मेट्रिक या तुमने कुछ रियल इम्पैक्ट क्रिएट किया या यू वांट कि ये बात तो इसको सुननी चाहिए, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा हाई एम्पलीट्यूड और मे बी समथिंग अपनी टोन के अबाउट कुछ कर सकते हो.
Isha, your voice is breaking. यार माइक ओपन माइक ऑन करके तुम लोग पूछ सकते हो। अभी शायद ईशा का नेटवर्क इज नॉट ऑल राइट अभी के लिए। आई थिंक मेरे को ये मीट का टाइमिंग कितना होता है इसमें प्रांशु? लिमिट होती है क्या टीम्स में? I have no idea. हमारे प्रोफेसर की मीट कैसे खत्म हो जाती थी? खुद end करते थे। कुछ क्वेश्चन चैट में ही है। Windows chat, ठीक है। What are most underrated skill for successing in a PM role? कम्युनिकेशन स्किल्स। Communication and problem solving. For off campus for APM, they demand experience, so we should apply for intern. If you have not already done an intern in college, at least 2, so you should go for an intern and then try converting that for a PPO. Or if you have done, then you should be searching for a full-time role. Even if you will try कि आपके पास internship नहीं है और आप APM full time role पे आप off campus में apply कर रहे हो, where your competition is those people जो full time role से full time switch कर रहे हैं, जो full time role के लिए apply करेंगे उनके पास internship है, so it will be very much difficult for you to crack full time role वो भी off campus में, ये market बहुत ही भरा हुआ है, so it's a very smart decision to go for an internship. Don't think it as okay मेरे को तो full time जाना है. स्टार्ट 3-4 महीने इंटर्नशिप करो, पीपीएम में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, फिर एक बेटर जर्नी बन जाएगी आपकी विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। भैया एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि किसी भी ओए का एप्टीट्यूड दे रहे हैं तो उसमें ऐसा जरूरी होता है कि हर एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन सही होने पे ही शॉर्टलिस्ट आती है, या फिर मतलब अगर नहीं इट्स लाइक समवॉट की परसेंटाइल जैसे मेंस में होता था कि हाँ जितने लोगों ने मैक्सिमम कर दिया उसके बाद ही सब आ रहे हैं। दिस इज क्या परसेंटाइल स्कोर तो कभी बेस्ड। अपन को पता भी नहीं चलता था ना, होएगा कैसे पता चलता है? स्कोर पता नहीं चलता है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गलत भी होते हैं, जिसके आंसर वो गलत है वो सबको फुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो उस पे इट्स लाइक जस्ट लाइक यू मेंस एंड एडवांस की गलत क्वेश्चन को छोड़ो, जो हो रहा है उसको करो। इट डिपेंड्स कि आपने कितनी जल्दी ये एक फैक्टर होता है कि आपने पेपर को कितनी जल्दी खत्म किया है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं आई बिलीव। अगर आप पेपर जल्दी, लेट्स से किसी के मार्क्स सेम है, जिसने जल्दी खत्म किया उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, दैट्स इट। कौन सा क्वेश्चन किया विल नॉट मैटर। यार वो देख लेना, थोड़ा हमारे बैच के लोगों के साथ हो गया। तो ओए देने गए थे, उनको पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना। उन्होंने जेई मेंस की स्ट्रेटेजी लगाई कि अब पीछे से करेंगे, नेक्स्ट 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 करते हुए पीछे चले गए, तब देखा पीछे नहीं आ सकते, तो एक क्वेश्चन कर पाए वो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, नेक्स्ट कर दोगे तो वापस बैक नहीं जा सकते, बहुत बहुत सारे मतलब पेपर्स। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है ना कि क्या सीखना है उधर। एंड ऑल्सो बहुत सारे ओए असेसमेंट में इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है उसी वेबसाइट पे, तो स्टार्टिंग में देख लेना कि ये फीचर है या नहीं, क्योंकि आई बिलीव कोऑर्डिनेटर्स आपको खुद से कैलकुलेटर जाना अलाउ करेंगे नहीं, तो वहां पे इन स्क्रीन कैलकुलेटर जो अलाउड करते हैं जो ऐप के अंदर होता है, उसको ढूंढ लेना कि उस स्क्रीन पे किस जगह पे है, ताकि आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन करने में। ओके भैया। अच्छा हाँ, एक्चुअली हाँ कैलकुलेटर नहीं मिल रहा था लोगों को। हाँ भाई, मिल सकता है, आराम से मिल सकता है, ऑफ कैंपस पे फेज 1 से भी ज्यादा मिल सकता है। क्या कह रहे हैं? किसी ने चैट से पूछा है कि ऑफ कैंपस में फेज 1 से ज्यादा मिल सकता है। मिल सकता है, इफ यू आर 1 in a million मिल जाएगा। तो ईशा, so like any more Sure. questions or shall we end this? I guess most of the questions are covered, so we could end this meeting. So before that, I would like to present you the memento on behalf of Career Council. Okay. Before you present that, I like to if everyone can switch on their cameras
we did this session together, so like I can take a picture साथ Yeah. में सबका. Guys, camera on कर लो सब. नहीं करेंगे, हमारे जैसे ही हैं सब. देखने के लिए. भाई वो कौन सा व्यू होता है जिसमें जिनका कैमरा ऑन होता है उनकी कार्ड्स बड़े आते हैं, इसमें बाकी छोटे छोटे आते हैं. एक ये होता है ये टुगेदर मोड जिसमें हाँ सिर्फ तो उनके उसी, फेसेस हैं. ठीक है, उसी पे ले लियो जरा स्क्रीनशॉट. हाँ ईशा वो हम थोड़ा सा ऐसे ही अपना बंदोबस्त कर रहे थे. ठीक है, हो गया. ओके भैया, सो अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी. So, okay. भैया विजिबल है ना? यस यस. Okay. So we hope that this session has provided you with the clarity that you all are hoping, and thank you so much, Bhaiya, for taking this further session. So on behalf of Career Councils and Student Counseling Services, we present you this memento and wish you all the very best for the journey ahead. Thank you. Thank you ईशा, thank you SCS. Thank you, Isha. Thank you for watching the session. Thank you guys for listening us. I hope आप लोग को help हो and you guys crack a very good companies phase 1 में and make your 4 years of college or 5 years of college wonderful. किसी को कोई डाउट आता है तो रीच आउट कर सकते हो. हाँ. I'll drop my number here. बांटने मत लगना, तुम लोग आए थे सेशन में इसलिए मैं दे रहा था. एंड रेफरल मत मांगना, मेरे पास कोई रेफरल नहीं है guys. मैं क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है. ठीक है, बाय बाय. Thank you so Bye much, bye. everyone, for joining. Thank you, Bhaiya. Thank you.